واضح رہے کہ 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر خفیہ آپریشنز کا ایک سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا، اور انہی خفیہ آپریشنز کے ذریعے اسرائیل نے ایران کے اندر انتہائی گہرائی میں پینیٹریٹ کرتے ہوئے نہ صرف ایران کے فضائی دفاعی نظام کو بری طرح متاثر کر دیا تھا، اس کے متعدد میزائل لانچرز کو تباہ کر دیا تھا، بلکہ اسرائیل نے ایران کی اعلیٰ ترین فوجی اور جوہری قیادت کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی، ایرانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری، ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ جنرل غلام علی راشد، پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس ڈویژن کے سربراہ جنرل امیر علی حاجی زادے اور پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل محمد کاظمی سمیت 15 سے زائد اہم ایرانی کمانڈر شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح اسرائیلی حملوں میں جہاں ایران کے کئی اعلیٰ عسکری عہدیدار شہید ہو گئے، وہیں ایران کی ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ فریدون عباسی اور تہران کی اسلامی یونیورسٹی کے سربراہ محمد مہدی تہرانچی سمیت ایران کے 17 جوہری سائنسدان بھی اسرائیل کا نشانہ بنے۔ ان سارے واقعات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایران کے سسٹم میں کس قدر اندر تک رسائی حاصل کر چکی ہے اور کسی بھی اہم شخصیت اور ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مگر اب تو یہاں تک تفصیلات سامنے آ گئی ہیں کہ ایران پر حملے میں ٹاپ ملٹری قیادت اور نیوکلیئر سائنسدانوں کو مارنے کے بعد بھی اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکار ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب فورس کے سینئر کمانڈرز کو براہ راست فون کر کے نظام کو غیر مستحکم کرنے، اس میں پھوٹ ڈالنے اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی کوششیں کر رہے تھے، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کمانڈرز کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، ان کے اہل خانہ کو فون کر کے دھمکیاں دے رہے تھے، حتیٰ کہ کچھ سینئر ایرانی شخصیات کو ان کے دروازے کے نیچے ایک وارننگ لیٹر موصول ہوا، بعض کو براہ راست فون کالز موصول ہوئیں اور باقیوں سے ان کی بیویوں کے ذریعے رابطہ کیا گیا، اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایسی ہی ایک فون کال تک لیک کر دی۔ اس کے علاوہ موساد نے جولائی 2024 میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری کے لیے ایران میں موجود حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تک کو نشانہ بنا کر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ایران کے سسٹم میں کس قدر اندر تک موجود ہے، کیونکہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ایران کی پاسداران انقلاب کے سب سے ایلیٹ ڈویژن کی حفاظت میں ایک اہم فوجی کمپاؤنڈ میں رکھا گیا، مگر اسرائیل نے اسی کمپاؤنڈ کے اندر اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا تھا۔ اس ساری صورتحال نے ایران میں حالیہ اسرائیلی حملوں سے متعلق لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج نے امریکہ کی حمایت سے ایران کے خلاف 12 دن کی جنگ میں سینکڑوں لڑاکا طیارے، مسلح ڈرون اور ری فیولنگ جہاز استعمال کیے، لیکن اسے ایران کے اندر سے شروع کی گئی کارروائیوں سے بھی بڑی مدد ملی۔ 13 جون کی صبح جب اسرائیلی فوج اور موساد نے ایران پر حملے شروع کیے تو اس کے صرف چند گھنٹوں بعد انہوں نے کچھ فوٹیجز جاری کی جو رات کے وقت ایران کے اندر کسی خفیہ مقام سے ریکارڈ کی گئی لگتی تھیں۔ ایک دھندلی ویڈیو میں موساد کے آپریٹرز کو دکھایا گیا جنہوں نے نائٹ ویژن گوگل سمیت ٹیکٹیکل گیئر پہنا ہوا تھا اور اپنے آپ کو کیموفلاج کیا ہوا تھا۔ موساد کے آپریٹرز ایران کے اندر ایک ریتیلے علاقے میں جھک کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے ہتھیار نصب کر رہے تھے جن کا مقصد ایران کے فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنا تھا تاکہ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے لیے راستہ صاف کیا جا سکے۔ دیگر ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ میزائل جن پر کیمرے لگے ہوئے تھے ایران کے میزائل ڈیفنس سسٹم اور بیلسٹک میزائل لانچنگ پلیٹ فارمز پر جا کر لگتے ہیں۔ یہ میزائل غالباً اسپائک میزائل تھے جو چھوٹے انتہائی درست نشانہ لگانے والے میزائل ہوتے ہیں اور دشمن کی نظروں سے چھپے ہوئے ہدف کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام نے بھی ان ہتھیاروں کے استعمال کی تصدیق کی ہے اور ایران کی سرکاری میڈیا نے ایسی تصاویر دکھائی ہیں جن میں اسپائک میزائل لانچرز کے بچے ہوئے حصے ایک کھلے علاقے میں پائے گئے، یعنی اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے ایران کے اندر سے ہی ان میزائلوں کو آپریٹ کیا تھا۔ ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ یہ ہتھیار انٹرنیٹ سے جڑے خودکار اور ریموٹ کنٹرول نظام سے لیس تھے اور ان کو موساد کے دہشت گرد ایجنٹس چلا رہے تھے۔ یہ کارروائی جزوی طور پر نومبر 2020 میں ہونے والی اسرائیلی آپریشن کی یاد دلاتی ہے جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے سینئر عہدیدار محسن فخری زادے کو قتل کر دیا گیا تھا۔ محسن فخری زادے کو تہران کے قریب ایک شہر میں اس وقت گولی مار کر نشانہ بنایا گیا جو اپنی بیوی اور محافظوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ اس وقت ایرانی حکام نے تصدیق کی تھی کہ یہ قتل ریموٹ کنٹرول اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والے آلات کے ذریعے کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ موساد نے ایران میں 1 ٹن وزنی گن مختلف ٹکڑوں میں سمگل کی تھی اور بعد میں اس گن کو اسمبل کر کے ایک پک اپ ٹرک پر نصب کیا گیا، پھر اس گن سے محسن فخری زادے کو قتل کیا گیا۔ قتل کے بعد دھماکے سے وہ گن بھی اڑا دی گئی۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران نے بدھ کی صبح مغربی آذربائیجان کے صوبے میں 3 افراد کو پھانسی دے دی۔
जिन पर इल्जाम था कि वो मोहसिन फखरीजादे के कत्ल और दीगर टारगेट किलिंग्स में मुलव्विस थे। अल जजीरा के मुताबिक इसराइल ने 12 दिन की जंग के दौरान ईरान पर हमले के लिए बड़ी तादाद में बारूदी मवाद से लैस छोटे ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल किए। ये कार्रवाई ईरान के दिफाई निज़ाम को उलझाने और कई डायरेक्शन से हमला करने की एक हिकमत अमली का हिस्सा थी। ईरानी मीडिया ने जंग के दौरान मुसलसल इत्तला दी कि मुल्क भर में फिजाई दिफाई निज़ाम को फाल किया गया ताकि छोटे ड्रोन्स के साथ साथ बड़े फौजी ड्रोन्स का भी मुकाबला किया जा सके। ईरान ने दावा किया कि उसने ऐसे कई बड़े ड्रोन्स मार गिराए हैं। ताहम कितने ड्रोन्स भेजे गए थे और उनमें से कितने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सके, इसकी आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी है। छोटे ड्रोन्स ने खासी तवज्जो हासिल की, जिसके बाइस ईरानी हुक्काम को उन्हें नाकारा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू करने पड़े। जबकि इस दौरान इसराइली लड़ाका तैयारे ईरान भर में बमबारी करते रहे और ईरानी हुक्काम ने खास तौर पर रात के वक्त सर्च पार्टियां मुनज़्ज़म की, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल थीं जो मोटरसाइकिलों या गाड़ियों पर गश्त करती थीं ताकि किसी मशकूक ट्रक या हरकत को तलाश किया जा सके। मुसल्लह और नकाब पोश सिक्योरिटी एहलकारों ने तेहरान और ईरान भर में खास तौर पर शुमाली सूबों में, जहां लाखों लोग तेहरान से निकल कर जा चुके थे, जगह जगह नाके और चेक पोस्टें कायम की। इन चेक पोस्ट पर अमूमन वो पिकअप ट्रक्स को रोकते और उनके ढके हुए सामान को तलाशी के लिए खोलते। इसराइल के मुताबिक कई साल की मंसूबाबंदी के बाद उनके एजेंट्स ईरान के अंदर अनमैन्ड व्हीकल्स बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां कायम करने में कामयाब हो गए थे। ऐसी ही एक कार्रवाई जनूबी तेहरान के इलाके शहर रे में पकड़ी गई, जहां ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक एक 3 मंजिला इमारत में ड्रोन्स, देसी साख्ता बॉम्ब्स और बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद तैयार किया जा रहा था। ईरान के सरकारी टीवी ने एक और ऐसी ही कार्रवाई की फुटेज भी दिखाई, जिसमें 6 ईरानी शख्स, जिन्हें मुसाद एजेंट्स कहा गया, छोटे बॉम्ब से लैस क्वाडकॉप्टर्स, टाइमर वाले बॉम्ब, दस्ती बॉम्ब और दीगर हथियार तैयार कर रहे थे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि इसके अलावा ऐसी गाड़ियों की भी इतलात थीं जिनमें बारूदी मवाद नस्ब किया गया था, लेकिन ईरानी हुकाम ने इसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की। सरकारी टीवी पर कुछ गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान को दिखाया गया जिनके हाथ बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। ईरानी अदलिया के सरबरा गुलाम हुसैन मोहसिनी और तेहरान के सरकारी वकील अली सालेह ने खुद सरकारी टीवी पर एक नामालूम मुल्जिम से तफ्तीश की, जिसने एतराफ़ किया कि वो मुसाद के लिए छतों पर चढ़कर ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की वीडियोज़ बनाने की कोशिशें कर रहा था। इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़ामीर ने बुध को एक वीडियो बयान में तस्दीक की थी कि इसराइली कमांडो फोर्सेस ने ईरानी इलाके के अंदर घुसकर खुफिया तौर पर कार्रवाइयाँ की और ऐसे ऑपरेशन अंजाम दिए जिनसे हमें अमली आज़ादी हासिल हुई। ताहम उन्होंने यह वाज़ेह नहीं किया कि वो इन कमांडोज़ की बात कर रहे थे जो ऑपरेशन की पहली रात दिखाए गए थे या किसी और मुमकिन कार्रवाई का हवाला दे रहे थे। ईरानी हुकाम ने इसराइली कमांडोज की ईरान के अंदर मौजूदगी या कार्रवाइयों से मुताल्लिक इन दावों पर कोई बराह रास्त तबसरा नहीं किया। ताहम ईरानी हुकाम मुसलसल मुल्क भर में इसराइल और अमरीका के साथ ताउन के इल्ज़ाम में दर्जनों गिरफ्तारियां करने का ऐलान करते रहे हैं और जंग के आगाज़ के बाद से अब तक कम से कम 6 अफराद को ऐसे इल्ज़ामात के तहत फांसी भी दी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये माना जा रहा है कि ईरान के अंदर इसराइली खुफिया कार्रवाइयाँ 13 जून को होने वाले अचानक हमलों की कामयाबी में अहम किरदार अदा करती रहीं, जिनसे जंग का आगाज़ हुआ था। इन हमलों में ईरान के कई आला फौजी कमांडर्स और साइंसदान मारे गए, एयर डिफेंस का कुछ हिस्सा नाकारा कर दिया गया और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया ताकि ईरान की जवाबी कार्रवाई की सलाहियत को महदूद किया जा सके। इसी दौरान इसराइल की हिमायत करने वाले हैकिंग ग्रुप्स की जानिब से ईरान में बड़े साइबर हमले भी किए गए, जिनसे मुल्क के 2 सबसे बड़े बैंक्स और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का निजाम वक्ती तौर पर बंद हो गया। इस हफ्ते रियासती मीडिया से मुंसलिक ज़राए की जानिब से एक बगैर तारीख की वीडियो गर्दिश में आई, जिसमें पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस डिवीजन के सरबरा अमीर अली हाजीजादे, जो इसराइली हमलों में मारे गए, वो एक तकरीर के दौरान ये कहते दिखाई दिए कि हम सब मोबाइल फोन्स और दीगर कम्युनिकेशन डिवाइसेस के जरिए मुसाद की निगरानी में हैं। अमीर अली हाजीजादे, जिन्हें तेहरान या उसके आसपास एक ज़ेर ज़मीन बंकर में दीगर आला एरोस्पेस कमांडर्स के साथ मीटिंग के दौरान कत्ल कर दिया गया, उन्होंने अपनी तकरीर में दूसरों को मोहतात रहने, अपने मोबाइल फ़ोन बंद रखने और उन्हें वक्तन फ़वक्तन तब्दील करने की तलकीन की थी। इसराइली साइबर हमले के जवाब में ईरानी हुकाम ने इंटरनेट की रसाई भी बंद कर दी थी। नेट ब्लॉक्स, जो कि एक इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी है, उनके मुताबिक एक मौके पर ईरान की तकरीबन 97% इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी गई थी। ये ना सिर्फ ईरान में नाफिज की गई सबसे बड़ी और सख्त इंटरनेट बंदिशों में से एक थी, बल्कि मुमकिन तौर पर दुनिया भर में भी ऐसी मुकम्मल बंदिश कम ही देखने को मिली है। ताहम जंगबंदी के निफाज के 2 दिन बाद जुमेरात तक ज़्यादातर इंटरनेट पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। इस सारी सूरत हाल में ईरान ने इसराइल के साथ ताउन करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है और साथ ही इस हवाले से मज़ीद सख्त कवानीन पर भी काम शुरू कर दिया है। इसकी तफसीलात छोटे से ब्रेक के बाद।
ईरान ने इसराइल के साथ ताउन करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है और साथ ही इस हवाले से मजीद सख्त कवानीन भी बनाने शुरू कर दिए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और अमरीका के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद अब ईरानी हुकाम ने गैर मुल्की हुकूमतों के साथ ताउन करने वालों को सख्त सज़ा देने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं और ईरान की पार्लियामेंट और अदलिया ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिनका मकसद कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद को ज़्यादा सख्त सजाएं देना है। ईरानी पार्लियामेंट ने पीर को एक ऐसे मंसूबे की मंजूरी दी है जिसका मकसद जासूसी करने वालों और इसराइल समेत दीगर दुश्मन ममालिक के साथ ताउन करने वालों को सख्त सजा देना है। इस हवाले से ईरानी पार्लियामेंट के एक रुकन अली रजा सलीमी ने कहा है कि कोई भी इंटेलिजेंस, जासूसी या अमली कदम जो इसराइल, अमरीका या दूसरे दुश्मन ममालिक के फ़ायदे में हो उसे ज़मीन पर फसाद फैलाने के ज़मरे में शुमार किया जा सकता है और इस जुर्म की सज़ा मौत है। यह कानून उन लोगों को भी निशाना बनाता है जो ऐसे हथियारों से जुड़े हों जो लोगों को मार सकते हों या खौफ व हिरास फैला सकते हों, और इन लोगों को भी जो दुश्मन ममालिक को खिदमात के बदले पैसे, जायदाद या क्रिप्टो करेंसी हासिल करते हों। रिपोर्ट के मुताबिक एक ईरानी रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि इस कानून से सिक्योरिटी इदारों को ज़्यादा खुली छूट मिल जाएगी। रिपोर्ट में इसराइल के साथ ताउन करने वालों की गिरफ्तारियों से मुतालिक मजीद लिखा है कि ईरान के शुमाल मगरिब में वाक़े मगरबी आज़रबाईजान सूबे के शहर उर्निया में बुध की सुबह हुक्काम ने 3 ईरानियों को इसराइल के साथ ताउन के इल्ज़ाम में फांसी दे दी। इन अफराद को मुहारबा यानी खुदा के खिलाफ जंग और ज़मीन पर फसाद फैलाने के जुर्म में सज़ा दी गई। इन पर इल्ज़ाम था कि वो ऐसी चीज़ें ईरान में लाए जो ईरानी हुक्काम को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल की गईं। अदलिया ने इन मारे गए अफराद के नाम नहीं बताए, लेकिन उन फांसियों को नवंबर 2020 में इसराइल के हाथों एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के कत्ल से जोड़ा जा रहा है। 13 जून को जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्ज़ामात में 3 दीगर लोगों को अलग अलग मुकदमात में फांसी दी है। जंग के दौरान इसराइली हमलों में ईरान में 600 से ज़्यादा अफराद मारे गए, जिनमें से कई हमले, खासतौर पर पहले दिन होने वाले हमले, इसराइली खुफिया मालूमात के जरिए किए गए थे। इन हमलों में कई ईरानी फौजी कमांडर्स मारे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 12 दिन की जंग के दौरान ईरान भर में कम से कम 700 अफराद को गिरफ्तार किया गया और रोजाना मजीद गिरफ्तारियों का ऐलान किया जा रहा है। ईरान के जनूब मगरिब में इराक की सरहद के करीब वाक़े खुजिस्तान सूबे के प्रोसिक्यूटर जनरल ने बुध को बताया कि 23 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई है और इन अफराद पर तखरीबी कार्रवाइयों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुक़द्दस निज़ाम के खिलाफ प्रोपेगंडे का इल्ज़ाम है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान के बहुत से दीगर सूबों में भी इसी तरह की गिरफ्तारियों या मुकदमात का ऐलान किया गया है, जिनमें मगरबी सूबे किरमानशाह से 115, जनूबी सूबे फारिस से 53 और शुमाली सूबे गिलान से 36 गिरफ्तारियाँ शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि इसराइल से मुबैना ताउन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद को जल्दबाजी में सजाएं देना यह जाहिर करता है कि ईरानी हुक्काम सजाए मौत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों पर कंट्रोल कायम रखा जाए और खौफ फैलाया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मजीद कहा कि जो लोग पहले से सजाए मौत के मुंतजिर हैं उनके लिए खतरा बढ़ गया है और ये भी बताया कि ऐसे मुल्जिमान को अक्सर इंतहाई गैर मुनसिफाना मुकदमात का सामना होता है। इसके अलावा ईरानी हुक्काम ऑनलाइन सरगर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, खासतौर पर ऐसी किसी भी सरगर्मी पर जो इसराइल या अमरीका के हक में समझी जाए, जैसे कि ईरान पर उनके फौजी हमलों की हिमायत करना। अल जजीरा के मुताबिक कुछ ईरानी शहरियों ने ऑनलाइन बताया है कि उन्हें अदलिया के जराइम के रोकथाम के महकमे की तरफ से एक जैसे पैगामात मौसूल हो रहे हैं। इन पैगामात में कहा गया है कि इसराइल से वाबस्ता किसी भी ऑनलाइन अकाउंट की मेंबरशिप या उसको फॉलो करना कानूनन जुर्म है और उस पर सज़ा दी जा सकती है। और इस पैगाम में लिखा होता है कि आपका नंबर सेहूनी रजीम के पेजेस से मुंसलिक पाया गया है। आपको खबरदार किया जाता है कि आप अपने हिमायती कमेंट्स और लाइक्स फौरन हटा दें और इन पेजेस को छोड़ दें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर छोटे ड्रोन्स और धमाका खेज क्वाडकॉप्टर्स के इस्तेमाल के बाद ऐसे तैयारों के हवाले से कवानीन को भी मजीद सख्त करने की तैयारी की जा रही है। ईरानी हुकूमत से मुंसलिक फारिस न्यूज़ एजेंसी ने बुध को रिपोर्ट किया कि ईरानी पार्लियामेंट ने एक मंसूबे की मंजूरी दी है जिसके तहत बगैर लाइसेंस के ड्रोन रखने वालों के लिए सज़ा मुकर्रर की जाएगी।